So we are discussing the business level strategy को हम discuss कर रहे हैं. What we are doing basically is to discuss the business level strategy को हम discuss कर रहे हैं. An organization core competency should be focused on satisfying the customer needs and want. एक organization की core competency कब होती है? should be उसके उसे focus करना होना चाहिए on satisfying the customer की needs को and wants को in order to achieve the better, ताकि क्या कर पाए वो in order to achieve better तरीके से achieve कर पाए than the average return. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी कब लाई करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी तब होती है शुड बी फोकस्ड ऑन सेटिस्फाइंग द कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे, वांट्स को, इन ऑर्डर टू अचीव द बेटर देन एवरेज रिटर्न, ताकि वो क्या करे, अचीव कर पाए बेटर देन एवरेज रिटर्न. दिस इज डन थ्रू बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. ये कैसे होगा? दिस विल बी डन थ्रू दी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज की दिस इज डन थ्रू बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. दिस इज ये कैसे होगा? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज के थ्रू होगा. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी डिटेल आउट द एक्शन टू बी टेकन टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कैसे डिटेल आउट करेगा? द एक्शन विच इज टू बी टेकन टू प्रोवाइड द वैल्यू टू द कस्टमर एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय एक्सप्लॉइटिंग द कोर कॉम्पिटेंसी. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कंसर्न किया जाता है विद द फर्म्स पोजीशन इन द इंडस्ट्री in relation to its competitors and to the five forces of competition discussed above. And to the five forces of competition discussed above. तो एक organization की core competency कैसे होगी? It should be focus होगी on satisfying the customer needs and wants. Business level strategy क्या होगा? What will be the business level strategy? एक organization की core competency जो होती है, that the same should be on a satisfying the customer need and wants in order to achieve the better than the average return, and this is done through the business level strategy. Business level strategy detail out करती है the action which is to be taken to provide value to customer and gain a competitive advantage by exploiting the core competency. Business level strategy concern होती है with the firm position in the industry in relation to its competitors and to the five forces of competition discussed above. Customer are the foundation of an organization business level strategy. Customers जो होते हैं they all are the foundation होते हैं of the organization के बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को लेके. कस्टमर जो होते हैं दैट द सेम आर दी फाउंडेशन होते हैं. कस्टमर्स जो क्या होते हैं? these आर दी फाउंडेशन. कस्टमर्स जो होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. हम क्या बोलते हैं? कस्टमर्स जो होते हैं दे ऑल आर दी फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. Who will be served, what need are to be met, how those needs will be satisfied are determined by the senior management. हम क्या बोलते हैं? that who will be served, कौन किसे सर्व किया जाएगा, what need are to be met, how those needs will be satisfied are determined by the senior management while drafting the business level strategy. कस्टमर्स होते हैं दैट द सेम आर दी फाउंडेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को लेके. कस्टमर्स जो होते हैं दैट द सेम आर दी फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस लेवल strategies. Who will be served, what need are to be met, how those needs will be satisfied determined by the senior management while drafting the business level strategy. Who are the customer? सबसे firstly that who are the customer कौन होता है? Knowing one's customer is of utmost importance in obtaining and sustaining a competitive advantage. Knowing one's customer को जानना is one of the utmost importance है in obtaining and sustaining a competitive advantage. Being able to successfully कैसे हम predict करें, satisfy करें future customer need is equally important. Perhaps one of the Tata's mistake in a manufacturing nano was to not being able to understand the customer's actual need. They wanted a small affordable city car, but durability was of more importance. तो हम क्या बोलते हैं? that who are the customers. कस्टमर क्या होता है? हु आर दी कस्टमर. कस्टमर कौन होते हैं? नोइंग वंस कस्टमर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है इन ऑब्टेनिंग एंड सस्टेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जानना वंस कस्टमर को इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है इन ऑब्टेनिंग एंड सस्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बीइंग एबल टू सक्सेसफुली प्रेडिक्ट एंड सेटिस्फाई फ्यूचर कस्टमर नीड इज इक्वली इम्पोर्टेंट. परहैप्स वन ऑफ द टाटा's मिस्टेक इन मैन्युफैक्चरिंग दी नैनो. जो टाटा की मिस्टेक थी जब वो नैनो
मशीनों को मैन्युफैक्चर करी थी वॉज टू नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, वो कस्टमर के एक्चुअल नीड को नहीं समझ पाए. दे वांटेड अ स्मॉल अफोर्डेबल सिटी कार बट ड्यूरेबिलिटी वाज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस. हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स. आप कैसे सेटिस्फाई करोगे कस्टमर की नीड्स को. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिटरमाइन दैट हाउ टू बंडल इट्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू फॉर्म द कोर competencies and then use this core competency to satisfy the customer needs and create value for them. Having selected a market, the organization must develop a plan to be successful in the market. Business strategy therefore looks at how the organization can compete successfully in the individual market that it chooses to operate it. तो कैसे आप satisfy करोगे कस्टमर के नीड्स को. ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना पड़ेगा that how to bundle its resources, कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटीज को, हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना होगा कि कैसे वो बंडल करेगी उसके रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटी को टू फॉर्म दी कोर कॉम्पिटेंसी बनाने के लिए, एंड देन यूज दिस कोर कॉम्पिटेंसी टू satisfy the customer needs and create value for them. Having selected a market, उसे क्या करना होगा, select करना होगा a market को. तो organization must develop a plan to be successful in the market. Organization को क्या करना होगा, it must develop a plan, develop करना होगा ताकि वो successful हो in that market में. Business strategy therefore look at how the organization can compete successfully in the individual market that it chooses to operate in. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी जो है दैट द सेम इज कंसर्न विद द इशू सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द इशू सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप मीट करोगे द नीड्स ऑफ की कस्टमर. हम क्या बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किससे कंसर्न होती है, हाउ द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी जो है वो कंसर्न होती है विद द इशू सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, मीट करोगे द नीड्स ऑफ की कस्टमर को. तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज व्हाट, इट इज कंसर्न विद द इशू, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, मीट कर पाओगे द नीड्स ऑफ द की कस्टमर की नीड्स को, कैसे आप अचीव कर पाओगे, अचीविंग द एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स के एडवांटेज को आप कैसे अचीव कर पाओगे, और कैसे आप अवॉइड कर पाओगे द कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज. तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी जो है दैट द सेम इज कंसर्न होती है विद द इश्यूज सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और मीट कर पाओगे द नीड्स ऑफ की कस्टमर. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कैसे कंसर्न होती है, व्हाट इज द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, इट इज कंसर्न विद द इशू सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, मीट कर पाओगे द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री को, द नीड ऑफ की कस्टमर्स को. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी जो है वो क्या बोलती है, ये कंसर्न होती है विद द इश्यूज सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इन मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर, और कैसे आप मीट कर पाओगे द नीड्स ऑफ की कस्टमर को, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर, कैसे आप अचीव कर पाओगे द एडवांटेज ऑफ ओवर कॉम्पिटिटर्स को, कैसे आप अवॉइड कर पाओगे द कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज को. तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किससे कंसर्न होता है विद द इश्यूज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और मीट कर पाओगे द नीड्स ऑफ की कस्टमर्स को, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, हाउ विल यू एबल टू आइडेंटिफाई एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किससे कंसर्न होता है, इट इज कंसर्न विद द इश्यू सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर्स की नीड्स को कैसे आप फुलफिल कर पाओगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे आप मीट कर पाओगे, आइडेंटिफाइंग मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर, कैसे आप अचीव कर पाओगे द एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, और कैसे आप अवॉइड कर पाओगे द कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज को आप कैसे अवॉइड कर पाओगे. तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किससे कंसर्न होती है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद द इश्यूज सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, मीटिंग कर पाओगे द नीड्स ऑफ की कस्टमर्स को. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, इट इज कंसर्न विद इश्यूज सच एज. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किससे कंसर्न होता है, ये कंसर्न होता है विद इश्यूज सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर की नीड्स को आप कैसे फुलफिल कर पाओगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे आप मीट कर पाओगे. हम क्या बोलते हैं दैट बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किससे कंसर्न होती है, इट इज कंसर्न विद इश्यूज सच एज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मीटिंग द नीड्स ऑफ द की कस्टमर. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज क्या होती है, व्हाट विल बी द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, इट इज कंसर्न विद इशू, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर, कैसे आप अचीव कर पाओगे द एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, कैसे आप अचीव कर पाओगे द एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, और कैसे आप अवॉइड कर पाओगे द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को.
द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किससे कंसर्न होती है? इट इज कंसर्न विद द इशू सच एज कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मीटिंग द नीड्स ऑफ द की कस्टमर, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर्स की नीड्स को कैसे आप पूरा कर पाओगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे आप मीट कर पाओगे द नीड्स ऑफ की कस्टमर्स को, कैसे आप अचीव कर पाओगे दी एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, कैसे आप अचीव कर पाओगे द एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स एंड कैसे आप अवॉइड कर पाओगे अवॉइडिंग द कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, मीट कर पाओगे द नीड्स ऑफ कस्टमर्स की नीड्स को, कैसे आप अचीव कर पाओगे द एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स के एडवांटेज को, कैसे आप अवॉइड कर पाओगे द कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज को। माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी क्या होता है? व्हाट विल बी द माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी? वी डिस्कस अबाउट द 5 फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिशन एज पर द माइकल पोर्टर। हमने डिस्कस किया अबाउट दी 5 फोर्सेस ऑफ कंपटीशन एज पर द माइकल पोर्टर। वंस वी आइडेंटिफाई दीज फोर्सेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ, द टास्क एट हैंड फॉर द मैनेजमेंट इज टू रेस्पॉन्ड टू दीज फोर्सेस स्ट्रेटेजिकली। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजीज? माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? व्हाट डज द माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट? तो वी डिस्कस अबाउट ही हमने 5 फोर्सेस तो डिस्कस किए कंपटीशन एज पर द माइकल पोर्टर। वंस वी आइडेंटिफाई दीज फोर्सेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ, अगर एक बार हम आइडेंटिफाई कर पाए कि व्हाट आर दीज फोर्सेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ, द टास्क एट हैंड फॉर द मैनेजमेंट इज टू रेस्पॉन्ड टू दीज फोर्सेस स्ट्रेटेजिकली। अकॉर्डिंग टू पोर्टर, पोर्टर क्या होता है? व्हाट इज पोर्टर? अकॉर्डिंग टू पोर्टर, strategy allow organization to gain the competitive advantage from 3 different bases। strategy allow करती है organization को, हम क्या बोलते हैं? strategy allow करती है organization को to gain the competitive advantage को gain करे from 3 different bases, that is the cost leadership, that is the differentiation and the focus। strategy allow करती है organization को, strategy क्या करती है? it allow the organization को कि कैसे वो gain करे competitive advantage from the 3 different bases। strategy allow the organization उसे competitive advantage gain करना है from the 3 different bases से, 3 different bases से, जैसे कि cost leadership, differentiation and focus। एंड पोर्टर कॉल्ड दिस बेस जेनरिक स्ट्रैटेजी। पोर्टर क्या बोलते हैं इसे? पोर्टर कॉल्ड इज दिस बेस जेनरिक स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी हैव बीन टर्म्ड एज जेनरिक। इस स्ट्रैटेजी को टर्म किया है जेनरिक बिकॉज दे कैन pursued by any type of size of business firm and even by not for profit organization। Cost leadership emphasize on producing a standardized product at a very low per unit cost of consumers who are price sensitive। Cost leadership, it emphasizes on producing the standardized product at a very low per unit cost for consumer who are price sensitive। जो कॉस्ट लीडरशिप है वो एम्फसाइज करती है ऑन प्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। हम क्या बोलते हैं? that cost leadership emphasize करती है on producing the standardized product आप कैसे बनाओगे at a very low per unit of cost for consumer who are, जो कि बहुत ही ज़्यादा price sensitive है। differentiation एक ऐसी strategy है which is aimed at producing product and services which is considered unique industry wide and directed at consumer who are relatively the price insensitive। तो cost leadership it emphasizes on producing the standardized product at a very low per unit of cost for consumer who are price sensitive। differentiation एक ऐसी strategy है which is aimed at producing product and service considered unique industry wide and directed at consumer who are relatively the price insensitive। focus means producing product and service जो कि fulfill करे the need of small group of consumer with a very specific taste। focus means क्या होता है? focus means producing products। focus में क्या करना होता है आपको? फोकस का बेसिकली मतलब होता है कि आपको प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को जो कि फुलफिल करे द नीड्स ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर विद अ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। तो व्हाट इज फोकस मींस? इट मींस प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि फुलफिल करे द नीड ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर विद अ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। पोर्टर स्ट्रेटेजी इम्प्लाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट, कंट्रोल प्रोसीजर एंड इंसेंटिव सिस्टम। पोर्टर की जो स्ट्रेटेजीज है दैट इम्प्लाई different organizational arrangements,
control procedures, incentive system. Larger firms with a greater access to resources typically compete on a cost leadership or a differentiation basis, where smaller firms often compete on a focus basis. पोर्टर की जो स्ट्रैटेजी होती है that imply the different organizational arrangement. What is Porter strategy? Basically, Porter strategy imply the different organizational arrangement, control, procedure and incentive system. Larger firms with greater access to resources typically compete on a cost leadership or differentiation basis, whereas smaller firms often compete on a focus basis. Larger जो company है that compete on a basis of a cost leadership or differentiation, whereas the smaller firm often compete on a focus basis. Competitive scope क्या है? What will be the competitive advantage? ब्रॉड टारगेट, कॉस्ट लीडरशिप. ब्रॉड टारगेट में क्या आता है? कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन. नैरो टारगेट में क्या आता है? फोकस, कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. तो आप ऐसे पिक्चर बना सकते हैं कॉम्पिटिटिव स्कोप और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ब्रॉड, नैरो. लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज. लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स में क्या आता है? कॉस्ट लीडरशिप और फोकस कॉस्ट लीडरशिप. डिफरेंशिएशन में क्या आता है? डिफरेंशिएशन और फोकस डिफरेंशिएशन. एंड दिस इज द कॉम्पिटिटिव स्कोप एंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. दिस इज द पिक्टोरियल मेमोरी, सो you can retain till the exams. Competitive scope, competitive advantage. Broad, narrow. Low or differentiation. Low cost producers or difference. Cost leadership, differentiation. Focus leadership, focus differentiation. Porter stresses the need for strategy to perform the cost benefit analysis ताकि evaluate कर पाए the sharing opportunity among the firm's existing and potential business unit. Porter stresses the need for strategies. Porter क्या कहते हैं? He stresses the need for strategists to perform cost benefit analysis ताकि वो evaluate कर पाए sharing opportunities को. Porter stresses the need for strategists. Porter stress करते हैं stress out. They stresses the need for strategists to perform the cost benefit analysis ताकि वो evaluate कर पाए sharing opportunities को among the firm's existing and potential business unit. Sharing activity and resources enhances the competitive advantage by lowering the cost of raising differentiation. Porter stresses the need for strategists to perform the cost benefit analysis to evaluate the sharing opportunities among the firm's existing and potential business. Among what? Among the firm's existing and potential business unit. Sharing activity and resources enhances the. जब हम share करेंगे activities को, resources को, it will enhances the competitive advantage को enhance करेगी. Sharing activity and resources. Sharing activity और resources क्या होगा? It will enhance करेगी जब हम share करेंगे the activities and resources को. When we sharing the things, हम share करेंगे activities को, resources को, ये enhance करेगी competitive advantage by lowering the cost को lower करेगी या फिर raising differentiation. या तो cost को lower करके आप competitive advantage create करो या through the differentiation. In addition to promoting sharing, Porter stresses the need for firms to transfer the skill and expertise among the autonomous business unit effectively in order to gain the competitive advantage. Depending upon the factors such as type of industry, size of firm and nature of competition, various strategies could yield advantage in cost leadership, differentiation and focus. Various advantages हो सकते हैं, there can be various advantages. उसके बाद हम जो फर्स्ट जेनरिक स्ट्रैटेजी, हम जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द कोस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन यही से क्रिएट करता है, आइदर फ्रॉम द कोस्ट लीडरशिप, फ्रॉम द डिफरेंशिएशन और फ्रॉम द फोकस कॉस्ट और फोकस डिफरेंशिएशन. मतलब एक केस स्टडी अगर कंपैरेटिवली इधर से क्वेश्चन आता ही है तो व्हाट विल बी द, लास्ट टाइम भी आया था नवंबर 22 में, तो व्हाट विल बी द कोस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. ये लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होती है जिसका एम होता है द ब्रॉड मास मार्केट. तो व्हाट इज द कोस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं दैट व्हाट विल बी द कोस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या होगी? इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. ये क्या होगी? एक लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होगी जिसका एम होगा विच एम्स एट ब्रॉड मास मार्केट. तो इट इज अ लो कॉस्ट, हम क्या बोलते हैं? इट इज व्हाट? इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी that aims at the broad mass market. It requires vigorous pursuit of cost reduction in an area of procurement, production, storage,
distribution of product or service, and also the economies in overhead cost. तो what will be the cost leadership strategy? क्या होगी? It is a low cost competitive strategy. एक ऐसी low cost competitive strategy होगी जिसका aim होगा that aims at the broad mass market. It requires vigorous pursuit of cost reduction in areas of procurement, production, storage, distribution of product, service, and also the economies in the overhead cost. Because of its lower cost, the cost leader is able to charge a lower price for its product. Because इसका जो हम क्या बोलते हैं that because of its lower cost, बहुत ही ज़्यादा कम मतलब कम दाम पे लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो द कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड देन मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर विल स्टिल अर्न satisfactory profit. For example, the McDonald's fast food restaurant have successfully followed the low cost strategy. Decathlon Group Mega Sports Store have been following the low cost. जो Decathlon Group Mega Sports Store है, that the same is following the low cost leadership strategy to gain the international recognition and also beat the competition. एक प्राइमरी रीजन जो होता है फॉर परस्यूइंग द फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज इज टू गेन द कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट्स. एक प्राइमरी रीजन जो होता है फॉर परस्यूइंग द फॉरवर्ड बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजी इज टू गेन द कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट्स. तो हम क्या बोलते हैं कि जो प्राइमरी रीजन होता है फॉर परस्यूइंग द फॉरवर्ड, हम क्या बोलते हैं दैट जो प्राइमरी रीजन होता है फॉर परस्यूइंग द फॉरवर्ड, बैकवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, वो क्या होता है इज टू गेन द कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट्स को गेन करना. दैट द सेम इज टू व्हाट? दैट द सेम इज टू गेन द कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट्स. तो जो प्राइमरी रीजन होता है परस्यू करने का चीजों को, जो प्राइमरी रीजन होता है फॉर परस्यूइंग द फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी इज टू गेन द कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट्स. जो प्राइमरी रीजन होता है फॉर परस्यूइंग दी, हम क्या बोलते हैं दैट दी प्राइमरी रीजन, जो प्राइमरी रीजन होता है फॉर परस्यूइंग द फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज टू गेन द कोस्ट लीडरशिप बेनिफिट. जनरली कोस्ट लीडरशिप मस्ट बी परस्यू इन कंजक्शन विद डिफरेंशिएशन. जनरली जो है कॉस्ट लीडरशिप मस्ट भी परस्यू किया जाना चाहिए इन कंजक्शन विद डिफरेंशिएशन. अ नंबर ऑफ कॉस्ट एलिमेंट जो कि अफेक्ट करते हैं द अट्रैक्टिवनेस ऑफ जेनरिक स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग द इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अचीव. जो हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ कॉस्ट एलिमेंट जो कि अफेक्ट करते हैं द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ जेनरिक स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग द इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव. लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट, द परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन achieve, the linkages with the suppliers and the distributor. Other cost element to consider while choosing among the alternative generic strategy include what? Include the potential for sharing cost and knowledge with the organization. R&D cost जो कि associated होता है with the new product development और modification of existing products, labor cost, tax rates, energy cost, shipping cost. This internal strategy of sharing resources to build a competitive advantage is called the synergy benefit. इस हम synergy benefit क्या बोलते हैं? तो जो primary reason है for pursuing forward, backward, horizontal integration strategies to gain the cost leadership benefit. जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो कॉस्ट लीडरशिप होती है इट मस्ट बी परस्यूड इन कंजक्शन विद डिफरेंशिएशन. A number of cost element affect करता है the relative attractiveness of generic strategy को including the economies or diseconomies of scale achieved. Learning and experience curve affects the percentage of capacity utilization achieved and the linkages with the suppliers and distributor. Other cost element to consider while choosing among the alternative generic strategy include the potential for sharing cost and knowledge within the organization, R&D cost associated with the new product development, modification of existing product, labor cost, tax rate, energy cost, shipping cost. This internal strategy of sharing resources to build a competitive advantage is called the synergy benefit.
Striving to be the low cost producer in an industry can especially be the effective when the market is composed of many price sensitive buyers and when there are few ways to achieve the product differentiation. तो when the market जो कब ज़्यादा अच्छा हो सकता है cost leadership. Striving to be the low cost producer in an industry can be especially be effective when the market is composed of many. When the market is, हम क्या बोलते हैं that when the market is composed of many price sensitive buyers से compose होता है. When the market is composed of many price sensitive buyers and when there are few ways to achieve the product differentiation. Further, when buyers do not care much about the difference from brand to brand or when there are large number of buyers with a significant bargaining power. हम क्या बोलते हैं further, when buyers do not care much about the difference from brand to brand or when there are a large number of buyers with significant bargaining power. The basic idea is to underprice the competitor and thereby the gain market share, driving some of the competitor out of the market. A successful cost leadership strategy usually permits करती है the entire firm को. हम क्या बोलते हैं, एक successful cost leadership strategy usually permits करती है the entire firm as evidenced by high efficiency, low overheads, limited perks, intolerance of waste, intensive screening of budget requests, wide span of control, rewards linked to cost containment, and broad employee participation in cost control efforts. Some risks of pursuing the cost leadership are that competitors may imitate the strategy, therefore driving overall industry profit down. हम क्या बोलते हैं, कुछ जो रिस्क है ऑफ परस्यूइंग द कॉस्ट लीडरशिप आर डेट कॉम्पिटिटर जो है वो इमिटेट कर ले द स्ट्रैटेजी को, देयरफॉर ड्राइविंग ओवरऑल इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट को गिरा दे. दिस कैन बी पॉसिबल that the technology breakthrough in the industry may make the strategy ineffective. हम क्या बोलते हैं, जो technological breakthrough है in the industry, it may make the strategy ineffective or that buyers interest may swing to other differentiating feature besides price. और क्या कहते हैं हम, जो buyer interest है that the same may swing to other differentiating features besides price. Achieving cost leadership strategy, आप कैसे अचीव करोगे, हाउ विल यू एबल टू अचीव दी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. हम क्या बोलते हैं, कैसे आप अचीव करोगे द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को. टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप फॉलोइंग एक्शन कुड बी टेकन. कैसे आप अचीव करोगे, हाउ विल यू एबल टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. कैसे आप अचीव करोगे द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को. टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप फॉलोइंग एक्शन कुड बी टेकन. How will you able to achieving the cost leadership strategy? To achieve the cost leadership strategy, following action could be taken. Promote prompt forecasting of demand of a product or service. हम क्या बोलते हैं, आप कैसे अचीव करोगे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को. आपको प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी होगी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. किसको लेके, ऑफ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस को लेके. आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखना होगा ऑफ द रिसोर्सेज टू अचीव द कॉस्ट एडवांटेजेस. आपको क्या करना होगा, व्हाट यू नीड टू डू इज टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द कॉस्ट एडवांटेज. तो टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप फॉलोइंग एक्शन कुड बी टेकन. कैसे आप अचीव करोगे, हाउ विल यू एबल टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. हाउ विल यू एबल टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. कैसे आप अचीव करोगे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को. प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी है डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस को लेके. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू अचीव द कॉस्ट एडवांटेजेस. आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा रिसोर्सेज को ताकि आप अचीव करो कॉस्ट एडवांटेजेस को. अचीविंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल दस लोअर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. आपको अचीव करना होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कि क्या करता है, वो लोअर करता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द मास प्रोडक्शन टू यील्ड द लोअर कॉस्ट पर यूनिट. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैकडोनल्ड्स. इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग. इन्वेस्ट करना होगा आपको कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में. व्हाट यू नीड टू डू इज टू इन्वेस्टिंग इन द कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग के लिए. रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम एसेंशियल. आपको क्या करना है, रेजिस्ट करना है, चीजों को मना करते रहना है. रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम एसेंशियल. तो व्हाट आर दी अचीविंग, कैसे आप अचीव करोगे, हाउ विल यू एबल टू अचीव दी
कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को आप कैसे अचीव करोगे? टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप फॉलोइंग एक्शन कुड बी टेकन। प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग कीजिए आप डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। आपको क्या करना है? प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी है ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज टू अचीव द कॉस्ट एडवांटेज। आपको प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी है। प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी है डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। फोरकास्टिंग करनी है प्रॉम्प्ट क्विकली तरीके से डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड और सर्विस को लेके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का ताकि आप अचीव करो कॉस्ट एडवांटेज को। अचीव करना है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कैसे आप लॉन्ग करोगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस को। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे करेंगे फॉर मास प्रोडक्शन टू यील्ड द लोअर पर यूनिट कॉस्ट। मैकडोनल्ड्स जैसे कि इन्वेस्ट कीजिए आप कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग। इन्वेस्ट कीजिए आप कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग। इन्वेस्ट कीजिए इन अ कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग। रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम असेंशियल। आप क्या कीजिए? रेजिस्टेंस कीजिए रेजिस्टेंट टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम असेंशियल। What are the advantages of the cost leadership strategy? Cost leadership strategy की advantages क्या होते हैं? Earlier we have discussed a Porter 5 forces model in detail. A cost leadership strategy may help to remain profitable even with a rivalry, new entrants, suppliers power, substitute products and buyers power. अर्लियर हमने क्या किया है? वी हैव डिस्कस द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एंड डिटेल। जैसे कि क्या डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में हेल्प टू रिमेन प्रॉफिटेबल इवन विद राइवलरी, न्यू एंट्रेंट, सप्लायर्स पावर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड बायर्स पावर। Rivalry, buyers, suppliers, entrant and substitute. Rivalry के competitor are likely to avoid a price war. राइवलरी क्या होता है? व्हाट इज राइवलरी? कॉम्पिटिटर आर लाइकली टू अवॉइड अ प्राइस वॉर। हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटर जो है द सेम आर लाइकली टू अवॉइड अ प्राइस वॉर को अवॉइड करते हैं। सिंस द लो कॉस्ट फर्म विल राइवलरी के कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू अवॉइड अ प्राइस वॉर सिंस द लो कॉस्ट फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट इवन आफ्टर कॉम्पिटिटर कंप्लीट अवे देयर प्रॉफिट्स। वो कंटिन्यू अर्न करते रहेंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, दे विल बी कंटिन्यू अर्न द प्रॉफिट even after the competitors compete away their profits. Buyers, powerful buyers जो होते हैं powerful buyers customer would not be able to exploit the cost leaders firm and will continue to buy its product. So powerful buyers और customers होंगे would not be able to exploit, नहीं करेंगे the cost leaders को and will continue the profit. तो इसके बाद will continue to buy the product. फिर suppliers के cost leaders are able to absorb greater price increases. कॉस्ट लीडर्स जो होते हैं दैट द सेम आर एबल टू एब्जॉर्ब करेंगे ग्रेटर प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम सप्लायर्स बिफोर द नीड टू रेज प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट। सप्लायर्स मतलब क्या है? कॉस्ट लीडर्स आर एबल टू एब्जॉर्ब, जो कॉस्ट लीडर्स होंगे दे आर एबल टू एब्जॉर्ब ग्रेटर प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम सप्लायर्स, ग्रेटर प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम सप्लायर बिफोर द नीड टू रेज प्राइस फॉर कस्टमर। इसको हम रीड करें, अंडरस्टैंड, इसको देखना पड़ेगा। एंट्रेंस क्या? लो कॉस्ट लीडर्स क्रिएट बैरियर्स टू मार्केट एंट्री। जो लो कॉस्ट लीडर्स होते हैं दे क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री थ्रू देयर कंटिन्यूस फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो जो लो कॉस्ट लीडर्स होते हैं, लो कॉस्ट लीडर्स क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री बिकॉज वो कंटिन्यू क्या करते हैं? फोकस करते हैं उनकी एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन पे, तो इट विल क्रिएट एंट्री टू द बैरियर्स for the new entrants. Substitutes क्या होता है? Low cost leaders are more likely to lower the cost to induce the existing customer to stay with their product, invest in developing substitute, in what? Invest in developing substitute and even purchase the patents खरीद लेते हैं. Okay. Now what are the disadvantages भी हो सकते हैं cost leadership strategy के? तो what will be the all disadvantages क्या होगा? Cost advantage may not last long as competitor may imitate cost reduction technique. कॉस्ट एडवांटेज ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि कॉम्पिटिटर्स तो है वो तो आपकी कॉपी कर लेंगे। दे माइट मे इमिटेट द कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक को, हो सकता है वो क्या कर ले? इमिटेट कर ले। कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव द हायर सेल्स वॉल्यूम। कॉस्ट लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ तभी अचीव की जा सकती है इफ द फर्म कैन अचीव द हायर सेल्स वॉल्यूम। तो हम क्या बोलते हैं? दैट
Cost leadership can succeed only if the firm can achieve the higher sales volume. अगर firm higher sales नहीं कर रहा है तो cost leadership इतनी effective नहीं होगी. उसके बाद cost leader tends to keep their cost low by minimizing cost of advertising, market research and development, but this approach can prove to be expensive in the long run. Cost leader tend to keep their cost low. Cost leader को क्या करना होगा? They tend to keep their cost low. उन्हें अपनी cost को कम करना होगा by minimizing cost of advertising. Cost leader tends to keep their cost low. जो कॉस्ट लीडर्स होते हैं उन्हें क्या करना होगा? दे मस्ट कीप देयर कॉस्ट लो बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कम रखे, मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट दिस अप्रोच कैन प्रूव टू बी एक्सपेंसिव. बट अगर ऐसा वो ऐसे ही करते रहे तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है लॉन्ग रन में, कि R&D पे तो खर्चा करना ही पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग पे भी करना ही पड़ता है. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज अ ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है दैट इज अ ग्रेट थ्रेट है टू द कॉस्ट लीडर. Now comes the differentiation strategy. Before starting, I need a 2-minute break.
तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं द अनदर कंसेप्ट, तो हमारा कॉस्ट लीडरशिप तो हो चुका है कुछ भी। मैं चाहती तो उसको फिर से रिपीट करूँ, बट एक बार डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेते हैं फिर ट्राई टू recollect the things. तो सबसे पहला differentiation strategy. What will be the differentiation strategy? Differentiation strategy क्या होता है? This strategy is aimed at broad mass market. इस strategy का aim like as the cost leadership strategy is aimed to क्या है cover करना, aimed to broad mass market and involves the creation of a product or service. और क्रिएट करना दी हम क्या बोलते हैं इन विच इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, और क्रिएट करना इन विच इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट or service that is perceived by the customer as unique, which is considered as unique by the customer. The uniqueness can be associated with the product design. Uniqueness को आप कैसे associate कर सकते हो? तो the same can be associated with the product design से, brand image से, features से, technology से, dealer network से, customer service से, etc. etc. The uniqueness can be associated with the product design. So uniqueness है तथा same can be associate हो सकती है with the product design से, brand image से. So uniqueness है तथा same can be associate हो सकती है with the product design से, brand image से, features से, technology से, dealer network से, customer service से, etc. Because of differentiation, the business can charge a premium for its product. And differentiation की वजह से जो firm है that the same can charge a premium for its product के लिए premium charge कर सकता है. Domino's Pizza has been offering the home delivery within the 30 minutes or the order is free. Domino's Pizza जो है वो ऑफर करता है होम डिलीवरी, आपको घर पे लाके पिज्जा देंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर, एंड द ऑर्डर इज फ्री. और क्या है, और द ऑर्डर इज फ्री मतलब ऑर्डरिंग के कोई चार्जेस नहीं होंगे, एंड और द ऑर्डर आई मीन डोमिनोज जो है वो 30 मिनट में आपको पिज्जा ला के देगा, वरना ऑर्डर फ्री हो जाएगा, वरना आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे. एंड इज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम इट्स राइवल. एंड दैट इज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि डिफरेंशिएट करता है इट फ्रॉम दी राइवल से. 30 मिनट में पिज्जा वरना फ्री is a unique selling point that differentiate it from its rival. Differentiation does not guarantee the competitive advantage. Differentiation आपको guarantee तो नहीं देता है competitive advantage की, especially if standard product sufficiently meet the customer needs. Differentiation does not guarantee the competitive advantage, especially if standard products sufficiently meet the customer needs or if rapid imitation by competitors is possible. Durable product protected by barriers to quick imitation by competitors is better. Successful differentiation can mean greater product flexibility, greater compatibility, lower cost, improved services, less maintenance, greater convenience, and more features. Product development is an example here of a strategy that offers the advantages of differentiation. The differentiation strategies should be pursued only after a careful study of buyer. Differentiation strategy जो है that the same should be carefully तभी pursue की जाएगी after a careful study of the buyer's need and the preference to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating feature into a unique product that features the customer desired attributes. A successful differentiation strategy allows a firm to charge a higher price for its product and to gain the customer loyalty because consumer may become strongly attached to the differentiation features. Essential features that differentiate one's product can include the superior service, spare parts, availability, engineering, design, product performance, यूजफुल लाइफ, गैस, मिलेज और ईज ऑफ यूज. और जो रिस्क एसोसिएटेड होती है विद परस्यूइंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, हम क्या बोलते हैं कि जो भी रिस्क होती है एसोसिएटेड विद डिफरेंशिएशन The risk associated with pursuing a differentiation strategy is that unique product may not be valued high enough by customer to justify the higher price. When this happens, a cost leadership strategy will easily defeat a differentiation strategy. And when this happens, a cost leadership strategy will easily defeat कर देगी. तो हम क्या बोलते हैं, risk associated होती है with the pursuing differentiation that unique product may not value high enough by customer to justify their higher price. When this happens, a cost leadership strategy will हरा देगी differentiation को. And other risk of pursuing differentiation strategies, मतलब uniqueness highly मतलब consider होनी चाहिए by the
कस्टमर्स के थ्रू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वरना दिक्कत हो जाएगी. When this happen, a cost leadership strategy will easily defeat a differentiation strategy. And another risk of pursuing a differentiation strategy is that competitor may develop way to copy the differentiation features quickly. Firm must find the durable sources of uniqueness. Durable, आपको ऐसा ढूंढना है कि मतलब durable source of uniqueness जो है लंबे समय तक चलता रहे, that cannot be imitated quickly imitation ना, उसका कॉपी ना हो, and cheaply by rival firm. For example, Amazon Prime offers deliver within 2 hours. Amazon Prime offer deliver करता है within 2 hours. This is a quite difficult to imitate. Amazon Prime जो है that the same offer that deliver within 2 hours. This is quite difficult to imitate its by its rival, and thus this differentiating factor helps in to lead the market में को लीड करने में हेल्प करता है. बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन मे बी द प्रोडक्ट, प्राइसिंग और द ऑर्गेनाइजेशन, तीनों हो सकती है. तो देयर आर सेवरल बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड द मेजर बीइंग प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो. डिफरेंशिएशन के जो है बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं. हम क्या बोलते हैं दैट देयर में भी सो मेनी बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन किस किस बेसिस पे हो सकती है. तो इट मीन्स दैट डिफरेंशिएशन किस किस बेसिस पे हो सकती है. इट कैन बी थ्रू द प्रोडक्ट, इट कैन बी थ्रू द प्राइसिंग, इट कैन बी थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. Product. Innovative product that meet the customer needs can be an area where a company has an advantage over the competitors. Innovative product जो कि meet करते हैं customer की needs को. Innovative product जो कि meet करते हैं customer की needs को can be the area. Innovative products जो meet करते हैं customer की needs को can be the area where the product has an advantage over the competitors. However, the pursuit of new product offering can be costly. Research and development as well as production and marketing costs can all add to the cost of production and distribution. The payoff, however, can be great as customers flock to be among the first to have the new product. Apple iPhone has invested huge amounts of money in R&D. Apple iPhone में क्या हुआ? They invested the huge amount of money in the R&D में बहुत सारा पैसा खर्च किया, and the customer value that, और customer उसको value भी करते हैं, and they want to among the first ones to try the new offering from the company. और वो क्या बनना चाहते हैं? They wants to among the first one to try the new offering from the company. से हर बार नए ऑफर्स, हर बार पहली जो नई ऑफर्स है वही लाए. तो इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट मीट द कस्टमर नीड्स कैन बी द एरिया वेयर अ कंपनी हैज एन एडवांटेज. प्रोडक्ट के थ्रू कैसे हो सकता है? इनोवेटिव प्रोडक्ट जो कि मीट करते हैं कस्टमर की नीड्स को कैन बी एन एरिया वेयर द कंपनी हैज एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स. हाउएवर द परस्यूट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग कैन बी कॉस्टली. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट कैन ऑल एड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. The payoff, however, can be great as customers flock to among the first to have the new product. Apple iPhone has invested huge amounts of money in R&D and the customer value that. They want to among the first one to try the new offering from the company. Then pricing आता है. Pricing क्या है? It fluctuate करता है based on its supply and demand. What is pricing? ये fluctuate करता है based on its supply और demand के according. Pricing change हो जाती रहती है and may also influence enhanced by customer ideal value for a product. कंपनी जो डिफरेंशिएट करता है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस कैन आइदर डिटरमाइन टू ऑफर द लोवेस्ट प्राइस और कैन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी थ्रू द हायर प्राइस. फॉर एग्जांपल, एप्पल आईफोन डोमिनेट्स द स्मार्टफोन सेगमेंट बाय चार्जिंग द हायर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट. It fluctuates based on its supply and demand and may also influenced by the customer ideal value for a product. कंपनी जो डिफरेंशिएट करती है based on a product price can either determine to offer the lowest price or can attempt to establish the superiority through the higher prices. Apple iPhone dominates the smartphone segment by charging the higher prices for its product. The next thing which comes is the organization. ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन हो सकता है. Organizational differentiation is yet the another form of differentiation. Maximizing the power of a brand or using the specific advantages that an organization possesses can be instrumental to a company's success. Location advantage, name recognition, and customer loyalty can all provide additional ways for a company to differentiate itself from the competition. For example, Apple has been building customer loyalty since years and has a fan base of consumers that are called Apple fan boys, fan girls. Apple fan boys, fan
girls. Organization differentiation is yet the another form of differentiation, maximizing the power of a brand or using the specific advantages that an organization possesses can be instrumental to a company's success. Location advantages, name recognition, and customer loyalty can provide additional ways for a company's differentiation itself from the competition. Apple has been built the customer loyalty since years and has a fan base of a consumer जिसे हम क्या बोलते हैं Apple fan boys, fan girls. कैसे आप अचीव कर सकते हो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को? हाउ विल यू एबल टू अचीव द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को आप कैसे अचीव कर पाओगे? टू अचीव द डिफरेंशिएशन फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कुड बी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. कैसे आप अचीव कर पाओगे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को? फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इट कुड बी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर. हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना होगा? व्हाट वी नीड टू डू इज टू ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर एंड मैच प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. हमें और ज्यादा यूटिलिटी देनी होगी, प्रोडक्टिविटी, उपयोगिता टू द कस्टमर एंड मैच द प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ प्रोडक्ट को मैच करने की कोशिश करेंगे. एलिवेट इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. हम क्या करेंगे? एलिवेट करने की कोशिश करेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. ऑफर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस फॉर बायर सेटिस्फेक्शन. हम ऑफर करेंगे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को, सर्विस को फॉर द बायर सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर करेंगे. रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप अप विद डायनेमिक एनवायरनमेंट. रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन करेंगे टू कीप अप विद डायनेमिक एनवायरनमेंट, टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहेंसिंग द ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू एंड फिक्सिंग द प्रोडक्ट प्राइसेस व्हिच इज बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड बाइंग द कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर. तो कैसे हम डिफरेंशिएशन को अचीव कर सकते हैं? व्हाट आर दी अचीविंग द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अचीव करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? टू अचीव द डिफरेंशिएशन फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कुड बी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर. हम ऑफर करेंगे यूटिलिटी टू द कस्टमर एंड मेज द प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ उसे मैच करने की कोशिश करेंगे. तो व्हाट विल वी ट्राई टू डू इज टू ऑफर द यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट एंड मेज द प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. एलिवेट करेंगे, इंप्रूव करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट को, ऑफर द हाई यूटिलिटी प्रोडक्ट सर्विस फॉर द बायर सेटिस्फेक्शन, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप अप विद द डायनेमिक एनवायरनमेंट, टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहांसिंग द ब्रांड इमेज एंड वैल्यू. ऑफर यूटिलिटी मतलब ज्यादा यूटिलिटी देंगे, ज्यादा उपयोगिता देंगे हम टू द कस्टमर टू मैच द प्रोडक्ट, ताकि वो मैच कर पाए कस्टमर के टेस्ट के साथ, प्रेफरेंस के साथ. इंप्रूव करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट को, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. ऑफर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करने की कोशिश करेंगे, सर्विस फॉर बायर सेटिस्फेक्शन. रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन करने की कोशिश करेंगे टू कीप अप विद द डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ. टेकिंग स्टेप्स लेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे ताकि हम एनहेंस कर पाए ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू को. फिक्स करेंगे प्रोडक्ट प्राइसेस व्हिच इज बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर ऑफ प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर. देन नेक्स्ट आता है दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. इसके भी कुछ एडवांटेजेस होंगे. और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में हेल्प कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन को टू रिमेन प्रॉफिटेबल इवन विद द राइवलरी. सो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होती है, इसमें हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है कि वो प्रॉफिटेबल हो इवन विद द राइवलरी के साथ, न्यू एंट्रेंट के साथ, सप्लायर्स पावर के साथ, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स के साथ एंड बायर पावर्स के साथ. तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो रिमेन प्रॉफिटेबल रहे इवन विद दी राइवलरी के साथ, न्यू एंट्रेंट्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, पावर्स के साथ, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स के साथ एंड बायर्स पावर. तो जो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्रॉफिटेबल रहे. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी जो है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो प्रॉफिटेबल रहे राइवलरी के साथ, न्यू एंट्रेंट्स के साथ, सप्लायर पावर्स के साथ, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स के साथ एंड बायर पावर के साथ. राइवलरी मतलब क्या होता है? ब्रांड लॉयल्टी एक्ट करती है एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर. It means that the customer will be less sensitive to price increases as long as the firm can satisfy the need of its customer. ब्रांड लॉयल्टी एक्ट करती है एज अ सेफगार्ड के साथ अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर. हम क्या बोलते हैं? ब्रांड लॉयल्टी जो है दैट द सेम विल act as a safeguard against the competitor. It means that customer will be less sensitive है to the price increases. Customer को प्राइस के बढ़ने से कोई मतलब नहीं. They what matter for them is the novelty for the product.
बायर्स दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर अ प्राइस, वो ऐसे नेगोशिएट नहीं करते, नेगोशिएशन नहीं करेंगे, एज दे गेट स्पेशल फीचर एंड दे हैव अ फ्यूअर पॉइंट्स होंगे इन द मार्केट. सप्लायर बिकॉज डिफरेंशिएटर चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, दे कैन अफोर्ड टू एब्जॉर्ब द हायर कॉस्ट ऑफ सप्लाईज एज द कस्टमर आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा टू. कस्टमर जो है एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार है. बिकॉज डिफरेंशिएशन चार्जेस अ प्रीमियम प्राइस, बिकॉज डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है, देयर इज अ प्रीमियम प्राइस, so they can afford to absorb the higher cost of supply as the customer are willing to pay an extra amount too. And its innovative features are an expensive offer. Innovative features जो है वो expensive offer होते हैं. हम क्या बोलते हैं that? What is that? Entrants. Innovative feature are an expensive offer. So new entrants generally avoid these features because it is tough for them to provide the same product with special feature at a comparable price. एंट्रेंस क्या होते हैं, व्हाट आर एंट्रेंस? इनोवेटिव फीचर आर एन एक्सपेंसिव ऑफर. इनोवेटिव फीचर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ऑफर होते हैं. सो न्यू एंट्रेंट जनरली अवॉइड दिस फीचर बिकॉज इट इज टफ फॉर देम टू प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट विद द स्पेशल फीचर्स एट अ कंपेरेबल प्राइस. इनोवेटिव फीचर्स जो होते हैं आर एन एक्सपेंसिव ऑफर. हम क्या बोलते हैं दैट इनोवेटिव फीचर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ऑफर होते हैं. सो न्यू एंट्रेंट जनरली अवॉइड दिस फीचर्स. It is very tough for them to provide the same product with a special feature at a comparable price. Substitute क्या है? Substitute product can't replace the differentiated product which have a high brand value and enjoy the customer loyalty. Substitute products जो होता है that the same can't replace the differentiated products को replace नहीं कर सकते हैं. Substitute products जो है that the same can't replace the differentiated products which have a high brand value and enjoy the customer loyalty. सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं दे कांट रिप्लेस नहीं कर पाते द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को विच हैव अ हाई ब्रांड वैल्यू एंड एंजॉय द कस्टमर लॉयल्टी. आप एंजॉय कर सकते हैं. तो व्हाट विल बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. इन द लॉन्ग रन यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन. लॉन्ग रन तक मतलब डिफरेंशिएशन ठीक है चलेगी बट इतनी भी नहीं चलेगी, लॉन्ग रन तक नहीं चल पाएगी. उसके बाद चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर में कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ टू अनदर ऑल्टरनेटिव. अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो तो उस केस में हो सकता है कस्टमर जो है वो स्विच ऑफ कर दे, दूसरे ऑल्टरनेटिव पे चला जाए. तो स्विचिंग हम क्या बोलते हैं दैट द चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर में कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ. हो सकता है स्विच ऑफ कर दे टू अनदर ऑल्टरनेटिव से एज वी शिफ्ट ऑफ आईफोन यूजर्स टू अदर एंड्रॉइड flagship smartphones as we see a shift of iPhone user to other Android. क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है iPhone यूजर्स भी शिफ्ट हो जाते हैं एंड्रॉइड पे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पे. तो डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ इट इज बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यू बाय द कस्टमर. डिफरेंशिएशन फेल हो जाएगी अगर कस्टमर उसकी वैल्यू ना करेगा. होम डिलीवरी ऑफ द पैक्ड स्नैक्स इन 30 मिनट वुड नॉट इवन बी अ डिफरेंशिएटर एज द कंज्यूमर वुड नॉट वैल्यू सच एन ऑफर. 30 मिनट्स में पैक्ड स्नैक्स आ जाएंगे बट कस्टमर अगर वैल्यू नहीं करेगा तो वो डिफरेंशिएशन नहीं रह पाएगी. दैट द सेम. तो यही है. और अब हम दोबारा से कॉस्ट लीडरशिप पढ़ना इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा. एंड वी विल रिकॉर्ड दी अनदर फोकस्ड लीडरशिप भी दूसरे में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. or Pascal's provider, and then the summary of the whole chapter that will be in the another part.